Hi everyone and welcome back once again. Today I want to say all of you if you are working hard for something या अगर आप किसी चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हो if you are studying very hard always study in such a way that your exams are going to be held from tomorrow. In such a way you should study just like your exams are going to be held from tomorrow, or you should study in such a way that just like your exams are going to be held after a gap of 6 hours. Imagine your exams are going to be held after a gap of 6 hours. How will you study? You will study very effectively, attentively. Same is the case what I want to say you. Whatever you are doing, whatever you are studying, study it very effectively by thinking just like your exams are going to be tomorrow or after a gap of 6 hours. And thank you. Now let's move towards our topic, that is theory of machines. Jkssb JE mechanical. There is power transmission by belts in the JE mechanical Jkssb syllabus. Power transmission by belts, flat belt and V belt. We have already discussed what the flat belt is. I have already, you can see my lecture number 3rd. There is a playlist, you can watch it very well and I have explained everything. Now जो आज का हमारा टॉपिक है, it is V belt. What is V belt? The name itself indicates. The name itself indicates its structure will be V-shaped structure. See, V-shaped structure. These V belts are preferred. These V belts are preferred while the center distance between two shafts is very less. While the center distance between the two shafts is very less. But in case of flat belt, what we were doing? Flat belts were using for long distances, but this V belt is used for short distances. You can see I have here drawn the sketch of this V belt and I am going to explain it. It is a trapezoidal and endless. You can see there is no end. It is continuously moving. It's continuously. There is no end. There is no end. You can see. And it is a trapezoidal structure, or it is cross-sectional area is a trapezoidal. What is meant by trapezoid? What is meant by trapezoid? Trapezoid is a quadrilateral having at least one pair of parallel sides. A trapezoidal is a quadrilateral having at least one pair of parallel sides. Same is the case with this. That is why this V belt is a trapezoidal structure. And it is also endless. There is no end. What lies inside this V belt? What lies inside this V belt is codes, which is at its core. Codes, or we can simply call it tension codes. These are codes or tension codes. What is its use inside this V belt? It increases the tensile strength. It increases the tensile strength. What does tensile strength mean? First thing is compression strength. Compression. This is tensile. It increases the tensile strength, the load bearing capacity. It is the maximum load. It is the maximum load which a material can bear without fracture. I hope you are getting my point. What does this cord inside this V belt does? It increases the tensile strength so that if there is any load on the belt, it will increase its tensile strength, which can prevent it from the maximum load and breaking. Now you can see here another layer is a rubber layer. First of all, I want to say you that this V belt
This V belt has a central layer. It has a central layer of cotton fabric, which is molded inside this rubber. What does molding mean? If we say mold, it means we are fitting something tightly around something. If you have seen metal molding, sand molding, what we do, that's in another topic we will discuss here. What I am telling you here, this V belt has a central layer called cotton fabric, which has been molded, fitted inside this rubber, which has been molded around this rubber like compound. Now, another point is you all got it is this structure, cords or tension cords, or rubber, cotton fabric. You all got it. Now this whole structure is enclosed. Now this whole structure is enclosed within an elastic material. Within an elastic material. इसको किस में भर दिया गया है? एक इलास्टिक मटेरियल में. What is meant by elastic material? An elastic material is a material which regains its original position after being stretched. क्या बता रहा हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्प्रिंग है. दिस इज द स्प्रिंग. दिस इज एन इलास्टिक मटेरियल. अगर हम इसको एक साइड से खींचेंगे नीचे तक, फिर इसको छोड़ देंगे, ये अपनी इस पोजीशन को फिर से अपनी पोजीशन पे आएगा. अगर हम इस स्प्रिंग को नीचे तक खींचेंगे, अगर फिर छोड़ देंगे, तो ये फिर से अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो रिगेन करेगा. उसको बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल, जो अपनी पोजीशन को फिर से रिगेन करेगा आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड. सेम इज द केस विद दिस. जब भी इस पे लोड आ जाएगा, तो लोड खत्म होने के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो फिर से रिगेन करेगा. मतलब अगर इस पे कोई भी लोड आएगा, ये फिर उस लोड को खत्म करने के बाद ये फिर से अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा. इसको इसलिए बोलते हैं इलास्टिक. इसलिए इसको उस इलास्टिक मटेरियल में भर दिया गया है. Now another point is this V belt has contact with the pulley. Suppose this is a pulley. This is the side of pulley, and here is the V belt. This V belt has contact only on two sides with the pulley. Just like this. This is the pulley. And this V belt, when this V belt is placed on this pulley inside the groove, it has contact only on two sides. One is this side, one is this side. With this pulley, this V belt has only contact with two sides inside the groove. What is meant by groove? If you have seen bicycle, I hope सब में देखा होगा. उसके ऊपर से जो ट्यूब लगा रहता है, उसके ऊपर से जो ट्यूब लगा रहता है, अगर हम उस ट्यूब के ऊपर एक टायर लगा रहता है, अगर हम उसको बाहर निकालेंगे, उस जो रबर टायर होता है उसको बाहर निकालेंगे, और जो उसके अंदर एक ट्यूब रहता है उसको भी बाहर निकालेंगे, और अंदर से जो व्हील बच जाता है, उसके ऊपर से जो वो ग्रूव रहता है, वो सर्कुलर ग्रूव, वो थोड़ा इस तरह से होता है, इस तरह से होता है. वो ग्रूव रहता है. ग्रूव मीन्स द कट पोर्शन. उसी में ये जो बेल्ट है उसी में फंसा देते हैं उसको. उसी ग्रूव में क्या कहा जाता है, इसकी कंटेक्ट दो साइड रहता है इसकी, और उसमें एक फोर्स लग जाता है. जब ये बेल्ट चल जाएगा, जब ये बेल्ट मूव करेगा, ये इस
पुल्ली पे फोर्स लगाएगा उसको बोलते हैं वेजिंग एक्शन। वेजिंग एक्शन, वेजिंग एक्शन। आपने एक एक्स देखा होगा, इसको बोलते हैं वेज शेप, इसको बोलते हैं वेज शेप। आपने इस तरह से भी एक देखा होगा, जो हम किसी बड़े जो लकड़ी होती है बहुत बड़ी, उसको तोड़ने का काम करते हैं या पत्थर तोड़ने का काम करती है, इसको बोलते हैं वेज, वेज शेप। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे बन गई इस पुल्ली का जो है वेज शेप, वेज शेप। इस पुल्ली का यहां पे वेज शेप बन गया। वही बता रहा है कि जो वेजिंग एक्शन होता है इसमें वेजिंग फोर्स, जो इसमें वेजिंग फोर्स लगता है, इस शेप में जो फोर्स लगता है इस पे, वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो इसमें पुल्ली रहती है वो एक इस शेप में होती है वेजिंग, वेज, वेज शेप में वेजिंग फोर्स। वेजिंग फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स इनटू ए नैरो स्पेस, फोर्स इनटू ए नैरो स्पेस। वेजिंग फोर्स, फोर्स इनटू नैरो स्पेस। जो बहुत छोटी जगह होगी उसमें एक फोर्स जो लगेगा उसको बोलते हैं वेजिंग फोर्स। अगर आप यहां पे देखोगे इस पुल्ली का ग्रू, इस पुल्ली का ग्रू जो है वो बहुत छोटा है, और इस पे जो ये बेल्ट, ये वी बेल्ट, इस पे एक फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं वेजिंग फोर्स। और इसी वेजिंग फोर्स की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब बेल्ट और पुल्ली के दरमियान एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मजबूत होगा, उतना इसका जो ग्रिप है, पकड़ है, वो बहुत ज्यादा होगी। उसी की वजह से ये जो बेल्ट है वो रोटेट करेगा और पावर जो है वो आगे जनरेट हो जाएगा। और क्या बताना चाहता हूं मैं, जब इसका इस वेजिंग फोर्स की वजह से इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जब ये मूव करेगा ये बेल्ट, वो पॉजिटिव ड्राइव होगा, पॉजिटिव ड्राइव। What is meant by positive drive? Means there is no slip. In V belt there is no slip due to wedging action, due to wedging force of the V belt. There is a positive drive, which means what is positive? No slip occurs. स्लिप जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया लेक्चर नंबर 3 में, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि स्लिप क्या होती है। मैंने वो अच्छी तरह वहां पे डिस्कस किया है। और एक पॉइंट पे भूल गया यहां पे बताना है, ये जो कॉर्ड्स होते हैं ये बैकबोन, इट फॉर्म्स बैकबोन ऑफ दिस वी बेल्ट। क्यों, सब लोड जो है वो इसी पे डिपेंड करता है। और जो वेज है वो आपको समझ आया, वो ऑब्जेक्ट जो एक साइड से थिक होगा और दूसरी साइड से टेपरिंग, टेपरिंग मतलब जो इस जो टेपरिंग है, ये जो है ये है टेपरिंग एंड। टेपरिंग जो एक साइड से थिक होगा और दूसरे जो साइड से ना वो टेपरिंग होगी। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान उसको बिठा दिया जाता है। जस्ट लाइक ये, अगर आप ये देखोगे, एक साइड इसका क्या है, थिक है, दूसरा क्या है, टेपरिंग, और इसको बिठाया जाता है किसमें, इस ग्रू में, इस ग्रू में। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी जो एडवांटेजेस है, वी बेल्ट की एडवांटेज। वी विल डिस्कस इट्स एडवांटेजेस। एडवांटेज नंबर 1, compact and velocity, high velocity ratio. If you will see, it's very compact. It is very compact. What is number 1? Compact and high velocity ratio. If you will see, it is very compact, neatly fitted. If you will see, this compact and high velocity ratio. Velocity ratio जो है मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया है। इसकी जो स्पीड है n1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d2। इसकी जो स्पीड है वो इसके डायमीटर पे डिपेंड करती है। इसकी जो स्पीड है वो इसके डायमीटर पे डिपेंड करती है। n2 डिवाइड बाय n1 इज इक्वल टू d1 डिवाइड बाय d2। In case of flat belt, velocity ratio is low. In case of V belt, velocity ratio is high. Provides shock absorption between driver and driven shaft.
What is meant by shock absorption? What is meant by shock absorption? A shock absorption is a thing or material which reduces the energy of impact. What's meant by impact energy? Shock absorption is a device, material or instrument or a thing which reduces the energy of impact. What is meant by energy of impact? Energy of impact is a energy that a material can withstand when a sudden load is applied or when a sudden force is applied. For example, अगर मेरे पास ये उंगली है, यहां से अचानक कुछ गाड़ी आएगी या कोई और फोर्स आएगा, इस तरह से इसको बोलते हैं इंपैक्ट एनर्जी, जो अचानक से आ जाएगा, सडनली आएगा। वही बता रहा है कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन है, इसमें इंपैक्ट एनर्जी जो है, इसमें जो अचानक से इसमें एक एनर्जी आ जाती है, ये उसको एब्जॉर्ब करता है। अगर आपने देखा होगा मोटरसाइकिल के जो साइड्स में, मोटरसाइकिल के साइड में जो वो स्प्रिंग रहती है, एक साइड भी पिछला जो इसका वो पिछला वाला टायर होता है उसके साइड में लगा रहता है, उसको स्प्रिंग नहीं, उसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। जब वो किसी जगह जंप में जाता है या आगे कोई किसी जगह स्पीड ब्रेकर आता है, तो वहां पे क्या होता है, वो इस तरह से हो जाता है, वो उसको जो भी अचानक से वो फोर्स आता है उस पर, वो उसको एब्जॉर्ब करता है, वो जो साइड में उसको स्प्रिंग्स रहती है वो उसको एब्जॉर्ब करती है। सेम इज द केस विद दिस, इट प्रोवाइड्स शॉक एब्जॉर्प्शन। जो इनमें सडन एनर्जी आ जाती है उनको एब्जॉर्ब करता है ये बेल्ट। पॉजिटिव एंड रिलेबल, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि व्हाई दिस इज पॉजिटिव। फ्लैट बेल्ट इज नॉट ए पॉजिटिव ड्राइव, बट दिस वी बेल्ट इज अ पॉजिटिव ड्राइव। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, which of the following is a positive drive, flat belt or V belt? It is a V belt. Positive drive means there is no slip. Positive drive means there is no slip between pulley and this belt. ये स्लिप जो है मैंने ऑलरेडी समझाया है क्या होता है। मैं एक बार फिर से यहां पे इसको डिस्कस करना चाहता हूं। स्लिप क्या होता है? विद टाइम जब यहां पे वियर एंड टियर होता है, फ्रिक्शनल ग्रिप, जो फ्रिक्शन इनके दरमियान एक ग्रिप होता है वो कमजोर हो जाता है। तो किसी टाइम ऐसा होता है ये जो बेल्ट है ये रोटेट तो करेगा, लेकिन ये जो है ये पुल्ली इसके साथ नहीं चलेगी, या पुल्ली चलेगी, बेल्ट जो है वो कभी कभी यहां तक चलेगा, यहां से नहीं चलेगा। ऐसे ही होता है इसमें, उसको बोलते हैं स्लिप। इस बेल्ट में जो स्लिप है वो 0 के बराबर है। 0 के बराबर नहीं है, ऑलमोस्ट तो ठीक है। स्लिप जो है इसका पॉजिटिव ड्राइव इसलिए है क्योंकि इसमें स्लिप नहीं है। रिलायबल, व्हाट इज मींट बाय रिलायबल? ये वो चीज है, ये वो बेल्ट है जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसके अंदर कॉर्ड्स रहते हैं, इसके अंदर एक फैब्रिक रहता है, ये एक केसिंग, इलास्टिक केसिंग में इनक्लोज किया गया है। हम इस पे रिलायबल, जिस पे हम भरोसा करेंगे, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। गुड क्वालिटी दे, जो इस आउटपुट का वो गुड क्वालिटी का होगा। बिकॉज ऑफ वेजिंग एक्शन इन ग्रूव, मैंने अभी आपको बताया वेजिंग एक्शन क्या होता है, फोर्स इनटू स्मॉल एरिया। इस बेल्ट का जो फोर्स लगता है इस ग्रूव में, जो वहां पे कट जिसपे ये लग जाएगा, ये ग्रूव, ये जो है ये ग्रूव जिसपे ये बेल्ट लग जाएगा, जो कट पोर्शन है उसमें जो वेजिंग एक्शन है, लॉस ऑफ पावर ड्यू टू स्लिप इज लेस। जो पावर लॉस हो जाता था फ्लैट बेल्ट में, यहां वो बहुत कम है। यहां पे पावर ट्रांसफर कैपेसिटी जो है वो हाई है एज कंपेयर टू फ्लैट बेल्ट। नो जॉइंट प्रॉब्लम, यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे किसी जगह कोई जॉइंट नहीं है, कोई एंड नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो जॉइंट प्रॉब्लम, इसमें जॉइंट प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी वेल।
In case there is any doubt, don't forget to mention in the comment box. I am here to assist you. अगर मुझे भी कोई पॉइंट पता नहीं है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसको ऐड कीजिए, ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ जान सकूं, या दूसरे जो बच्चे हैं वो भी एटलीस्ट कोई न कोई पॉइंट जो है वो जान लेंगे। इंसान दुनिया में आया है सब बस हासिल करने के लिए। ईच एंड एवरी डे इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लर्न समथिंग न्यू। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको भी कोई पॉइंट जो है वो पता है, प्लीज ऐड इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं भी उसको जान सकूं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन। नाउ लेट अस डिस्कस इट्स डिसएडवांटेजेस। अगर हम ऐसे ही देखेंगे इसको इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा। इसको बनाने में पहले कार्ड्स जो है वो फिट करना पड़ेगा, उसके ऊपर रबर, उसके अंदर से एक फैब्रिक जो है वो भी लगाना पड़ेगा, फिर एक ऐसा इलास्टिक केसिंग लाना है, उसमें उसको फिट करना है। इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ऊपर से जो ये पुल्लीज होती है उनके ऊपर एक ग्रू रहता है, एक कट पोर्शन, जिसमें इसको फिट करना पड़ता है। फैब्रिकेशन ऑफ पुली विद ग्रू इज कॉम्प्लिकेटेड। ये एक हेक्टिक प्रोसेस है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मुश्किल मुश्किल काम है। नंबर सेकंड पॉइंट, इसीलिए जो नंबर फर्स्ट पॉइंट है, इनिशियल कॉस्ट इज मोर। इसका जो खर्चा होगा, स्टार्टिंग में जो खर्चा होगा वो ज्यादा होगा। वो मैंने बताया क्यों। इसका ग्रू करना, कट करना, उसको फिर इस तरह का रबर लाना, इस तरह का फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक, उसके अंदर कॉर्ड्स डालना, ये एक कॉम्प्लिकेटेड काम है। नंबर सेकंड, कैन नॉट बी यूज्ड सेंटर डिस्टेंस इज लॉन्ग। अगर सेंटर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम वहां पे ये वाला बेल्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इम्प्रॉपर बेल्ट टेंशनिंग एंड मिसमैचिंग ऑफ बेल्ट decreases the result, output result. Improper belt tensioning. What is meant by tension? Ankle tension. अगर आप यहां पे देखोगे, द मोशन ऑफ द बेल्ट, अगर ये बेल्ट अगर ये बेल्ट जो है ये रोटेट करता है इस पे, इस पुल्ली पे, इट इज बिकॉज ऑफ सम फ्रिक्शनल ग्रिप। इट इज बिकॉज ऑफ सम फ्रिक्शनल ग्रिप। जब इसके दरमियान और इस पुल्ली के दरमियान और इस बेल्ट के दरमियान एक ग्रिप जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा, तब ये जो है मोशन वो बहुत ज्यादा होगा, स्पीड भी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसलिए क्या किया जाता है, जब इस मशीन को स्टार्ट करने से पहले ये जो बेल्ट्स है इनको स्ट्रांगली, टाइटली इस पे बंद किया जाता है। उनमें एक टेंशन, जब इनको दोनों साइड से स्ट्रांगली इनको बंद किया जाएगा, उनमें एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, एक स्ट्रांग टेंशन। जब इनको बहुत स्ट्रांग से जो है इनको फिट किया जाएगा तो यहाँ पे एक टेंशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। वही बता रहा है, अगर इसमें से जो हम इसको लूज रखेंगे या मिसमैच हो जाएगा, जिस तरह से हमें उसको ऊपर लगाना था हमने थोड़ा सा मिसमैच किया, इस वजह से जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट, वो क्या आएगा, बहुत कम। एप्लीकेशन मतलब हम इसको किस किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस वी बेल्ट को। अगर आपने गाड़ी देखी होगी, उसमें अगर आपने ओपन किया होगा, जो फैन है उस फैन के साथ एक इसी तरह का एक जो है ये बेल्ट है वो रहता है। सबसे पहले हम भी जानते हैं ऑटोमोबाइल इंजन। जब ऑटोमोबाइल इंजन जो है वो ऑन हो जाएगा, जब इंजन ऑन हो जाएगा तब जो बाकी पार्ट्स है वो ऑन हो जाएंगी। कहाँ हम इसको इस्तेमाल करें, ऑटोमोबाइल इंजन किस लिए, तो ड्राइव एक्सेसरीज। एक्सेसरीज इसके जो पार्ट्स होंगे इंजन के, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर, वहां पे एक एयर कंप्रेशन भी रहता है, कंप्रेसर रहता है। पावर स्टीयरिंग पंप्स, पावर स्टीयरिंग जो है उसमें जो पंप है वो उसको चलाने के लिए हमें इन बेल्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। फैन्स, लेथ भी एक मशीन है, उसमें एक टूल रहता है, आप इमेज में देख ही रहे होंगे, उसमें एक टूल रहता है, उसको बहुत जो आगे वाला उस टूल का जो है जो एंड है, आगे वाला एंड, उसको बहुत ही शार्प किया जाता है।
और उस वजह से उस लेथ से हम क्या क्या ड्रिल कर सकते हैं। किसी को टेपरिंग बनाना होगा, किसी के ऊपर ग्रूव्स बनाने होंगे। ग्रूव्स, अगर आपने देखा होगा नट, नट के अंदर एक ग्रूव्स रहते हैं, वो भी हम उससे बना सकते हैं लेथ मशीन से। ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन में भी इस्तेमाल होता है ये क्या, वी बेल्ट। थैंक यू गाइस, ये था हमारा वी बेल्ट। इन केस देयर इज एनी डाउट, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और आप जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको हमारा जो ये सेशन है जो हमने स्टार्ट किया, कैसा लग रहा है आपको, ताकि मैं इम्प्रूव करता रहूँगा, इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाता रहूँगा। एंड तब जरूर एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।